ملتان میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی دربار موسیٰ پاک شہید کے احاطے میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. موقع پر میں تمام عالم اسلام کو، وہاں کے تمام مسلمانوں کو، پاکستان میں مسلمانوں کو میں عید کی بھی اور روزوں کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں اپیل کرتا ہوں تمام فلنتھراپسٹ جو دنیا میں ہیں اور باشمول جو پاکستان میں ہیں، اور وہ مخیر حضرات جو اس وقت ہمارے ملک میں ہیں، اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ جو مخیر حضرات ہیں اور انٹرنیشنل جو فلنتھراپسٹ ہیں، وہ اس وقت غزہ کے، فلسطین کے، کشمیریوں کے، پاکستان میں جوانوں کے جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، ان کو اس موقع پر ان کو قطعاً نہیں بھولنا چاہیے. اور میں اپنی جانب سے اور اپنے خاندان گیلانی کی جانب سے آپ سب تمام مسلمانوں کو، پاکستان کے عوام کو مبارکباد. گیلانی صاحب، آپ ملیشیا کا دورہ کر کے آئے، کا فیصلہ کیا گیا بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، نیشنل سیکورٹی کونسل میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں اور اس کے اندر وہ ان کیمرہ سیشن تھا، تو اس لیے جو فیصلے ہوئے اس کے بارے میں جو متعلقہ جو حکام ہوں گے وہی جواب دیں گے. ملیشیا کے دورے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ دورہ بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے، تو یہاں آئے ہیں ملتان سیدھے. میں ملیشیا کے بارے میں ایک انٹرنیشنلی امپورٹنٹ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ملیشیا میں مجھے جو آرگنائزر تھے انٹرنیشنل اسپیکرز کانفرنس کے، انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا کوالالمپور میں، اور اس وقت اسپیکر جو وہاں کے ملیشیا کے اسپیکر تھے وہ بھی اس تقریب میں وٹنس تھے، اور انہوں نے مجھے انٹرنیشنل اسپیکر کانفرنس کا وہ باضابطہ انہوں نے مجھے اس کا پہلا فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ اور اس کا لیے مجھے نامزد کیا ہے، اور اس میں 45 ممالک سے اسپیکر وہاں آئیں گے، اور اس کے علاوہ 450 مندوبین ہوں گے جو پارلیمنٹرین ہوں گے. یہ تقریب 11 تاریخ کو سیول میں، کوریا میں کی منعقد ہوگی، جس پہ باضابطہ طور پر مجھے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ اور اس کا انٹرنیشنل اسپیکر کانفرنس کا چیئرمین کا اعلان کیا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایک پاکستان کو انہوں نے گلوبل لیڈر تصور کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس تنظیم کے تحت ہم نے جو اس وقت ملک میں اور انٹرنیشنل جو حالات ہیں کلائمیٹ چینج کے بارے میں، اور ادھر ان جو بھی وہاں ڈسپیوٹس ہیں، جو وہاں کنفلکٹس ہیں، ان کو جمہوری انداز میں حل کرانے کے لیے کوشش کی جائے گی. اور جب باضابطہ اعلان سیول کوریا میں ہوگا اس کے بعد وہ تمام جو انفارمیشن ہے آپ تک پہنچائیں گے. مگر میں اسپیکر رحیم یاخان میں MNA جاوید اقبال وڑائچ کی عید کی خوشیاں اپنوں کے سنگ. جاوید اقبال وڑائچ نے اپنے گھر میں بھائی، بچوں اور بھتیجوں کے ساتھ عید گزاری. مزید آگاہ کریں گے عاصم صدیق. جاوید اقبال وڑائچ عید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ منا رہے ہیں. ان کے بھائی امریکہ سے خصوصی طور پر عید منانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور جو اہل علاقہ ہیں وہ بھی ان سے عید ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اور دیکھا جا رہا ہے ان میں انہوں نے عیدی بھی تقسیم کی ہے. جاوید اقبال وڑائچ صاحب، پہلے تو ہماری طرف سے آپ کو عید مبارک ہو. بچے ہیں، فیملی ہے، سب ایک ساتھ دیکھا جا رہا ہے. جب چھوٹے تھے اس وقت عید کیسی تھی، اب بڑے ہیں تو پھر کیسے عید منا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام اہل اسلام کو عید مبارک. اہل علاقہ، ہمارا رینجر، ہاں ہمارے ملک کے
जितने भी मुसलमान हैं उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ये ईद खुशियों की ईद होती है, ये समैयों की ईद होती है। यहाँ पे सारे हमारे जितने भी भाई रिलेटिव्स हम इकट्ठे होते हैं इस ईद पे। जैसा कि भाई आए हैं अमेरिका से, इस तरह हमारे लाहौर से, जहाँ जहाँ भी हमारे अजीज़ो कारब हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये खुशियों की ईद है और खुशियाँ मना रहे हैं और खुशियाँ बांट रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह बांटते रहेंगे। आप अमेरिका से स्पेशली ईद मनाने के लिए अपनों के साथ आए हैं, मुझे ये बताएं कि ईद वहां पे कैसे गुजरती थी जब अपने घर में होते हैं, अपनों के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, फिर कैसे गुजरती है? माशाल्लाह जी, न्यूयॉर्क में भी तमाम ईदें मैंने उधर ही मनाई हैं क्योंकि मैं उधर रहता हूँ। वहाँ भी हम बड़ी खुशी से मनाते हैं, लेकिन जो आज अपने घर में और अपने लोगों में मिलजुल के ईद पड़ी है मरकजी ईदगाह में, यहाँ खुशी महसूस हुई है, वो एक अनोखी है। और मैं इस मौका पे एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वो वक्त है जबकि हमें फ़लस्तीन के मज़लूमों को ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं, मस्जिद अक्सा के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, और इस वक्त को हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। इन खुशियों के मौके पे भी उनको हमें याद रखना चाहिए। इस वक्त डेरे पर रश है, लोगों का तांता बना हुआ है ताकि ईद मिली जा सके, एक दूसरे के साथ खुशियों का पैगाम दिया जा सके। आसिम, शुक्रिया आपका। रहीम याब खान में MNA जावेद इकबाल वड़ाइच की ईद की खुशियां अपनों के संग। जावेद इकबाल वड़ाइच ने अपने घर में भाई, बच्चों और भतीजों के साथ ईद गुजारी। रहीम याब खान में MNA जावेद इकबाल वड़ाइच की ईद खुशियां अपनों के संग। जावेद इकबाल वड़ाइच ने अपने घर में भाई, बच्चों और भतीजों के साथ ईद गुजारी। MNA जावेद इकबाल वड़ाइच के घर ईद मिलने के लिए अहले इलाका की आमद। जावेद इकबाल वड़ाइच ने मुस्तहिक अफराद में ईदी भी तकसीम की। जावेद इकबाल वड़ाइच के भाई फारूक वड़ाइच की अमेरिका से आमद। फारूक वड़ाइच की फ़लस्तीनी बहन भाइयों को ईद की खुशियों में शामिल करने की सदा। रहीम याब खान ने MNA जावेद इकबाल वड़ाइच की ईद खुशियां अपनों के संग। जावेद इकबाल वड़ाइच ने अपने घर में भाई, बच्चों और भतीजों के साथ ईद गुजारी। MNA जावेद इकबाल वड़ाइच के घर ईद मिलने के लिए अहले इलाका की आमद का सिलसिला जारी है। जावेद इकबाल वड़ाइच ने मुस्तहिक अफराद में ईदी भी तकसीम की। जावेद इकबाल वड़ाइच के भाई फारूक वड़ाइच की अमेरिका से आमद। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने पुलिस लाइन में नमाज ईद अदा करने के बाद पुलिस अफसरान और अहलकारों से ईद मिले। खानेवाल में DPO इस्माइल खड़क ने नमाज ईद पुलिस लाइन में अदा की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पुलिस अफसरान और अहलकारों से ईद मिले। पुलिस अहलकारों ने जाफशानी से ड्यूटियां सर अंजाम दी। DPO की जानिब से ऐसा कहा गया। मजीद कहना था कि पुलिस शहदा की फैमिलीज के साथ ईद की खुशियों में शरीक हैं। अहले खानेवाल को ईद की खुशियां मुबारक हो। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने पुलिस लाइन में नमाज ईद अदा की और फिर पुलिस अफसरान और अहलकारों से ईद मिले। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने पुलिस लाइन में नमाज ईद अदा की। वेलकम बैक। DC इमरान तौकीर और DPO मंसूर अमान का डिस्ट्रिक्ट जेल विहाड़ी का दौरा। ADCR सैयद उस्मान मुनीर, AC गजाला कमल और दीगर अफसरान भी मौजूद। DC और DPO ने असीरान जेल में मिठाई तकसीम की और ईद की मुबारकबाद दी। DC का कहना था कि असीरान जेल को भी ईद की खुशियों में शामिल करना चाहिए। DC का मजीद कहना था कि जुराइम के खात्मे के लिए मुआशरती रवैयों को बेहतर करना होगा। किसी भी असीर की इज्जत नफ्स मजरू नहीं होनी चाहिए। DC इमरान तौकीर और DPO मंसूर अमान का डिस्ट्रिक्ट जेल विहाड़ी का दौरा। ADCR सैयद उस्मान मुनीर, AC गजाला कवल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। विहाड़ी में DPO मंसूर अमान ने ईद नमाज पुलिस लाइन्स में अदा की। DPO मंसूर अमान की नमाज की अदायगी के बाद तमाम अफसरान को ईद की मुबारकबाद। DPO की ईद पर बेहतरीन सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देने पर पुलिस जवानों को शाबाश। DPO ने ईद के मौके पर दर्जा चहारम के पुलिस मुलाजमीन को ईद भी तकसीम की। मंसूर अमान ने पुलिस अफसरान और जवानों के हमरा
पुलिस लाइन्स में रिफ्रेशमेंट भी की। बिहाड़ी में डीपीओ मंसूर अमान ने ईद नमाज पुलिस लाइन्स में अदा की। डीपीओ मंसूर अमान की नमाज की अदायगी के बाद तमाम अफसरान को ईद की मुबारकबाद। बिहाड़ी में नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों का शहर खामोशा का रुख। शहरियों का अहले खाना के हमरा फोशुदगान के लिए दुआए मग़फ़िरत। शहरियों ने बिछड़ने वालों की आखिरी आरामगाह पर मग़फ़िरत की दुआ की। शहरियों की जानिब से अपने प्यारों की कब्रों पर फूल रखे गए। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों का शहर खामोशा का रुख। मियांवाली के शहरियों ने मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया है। कोई मिक्स मिठाई खरीद रहा है तो कोई स्पेशल मिठाई खरीद रहा है। कहते हैं कि मीठी ईद पर मिठाई जरूरी है, मेहमानों को मिठाई पेश करेंगे। मजीद जानते हैं अख्तर मुजाज से। जी अख्तर। हाँ जी बिल्कुल, मीठी ईद हो और मीठी ईद पे मेहमानों को मिठाइयाँ पेश ना की जाए तो ये भी नामुमकिन है। मियांवाली की शहरियों ने ईद नमाज के बाद जो मिठाई की दुकानें हैं उनका रुख किया हुआ है। यहाँ पे शहरी जो है मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, काफी रश लगा हुआ है। इस हवाले से हम शहरियों से भी बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। सर क्या कहेंगे, क्या खरीदने के लिए आए हुए हैं? मीठी ईद पे मिठाई खरीदने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। यहाँ लाजमी बात है हर बंदा इंशाल्लाह ये मिठाई बिस्कुट वगैरह सब कुछ लेने आए, लेकिन मैं तो पर्सनली जो है ना हर ईद पर इनकी जो ये फेनियाँ हैं ना, फेनियाँ बहुत मशहूर सौगात है। मैं तो सर अब इस वक्त 2.5 किलो वही लेने आया हूँ। इंशाल्लाह मिठाई का नंबर आएगा तो मिठाई भी लेंगे, लेकिन अवाम उन्नास का जो हजूम देख रहे हैं इंशाल्लाह सब लोग मीठी ईद है मिठाइयों की तरफ आ रही हैं। बहुत जी, मीठी ईद पे सब लोग मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। एक और शहरी आपसे भी बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? जी सर, अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद मुबारक हो हमारी तरफ से। अख्तर शुक्रिया आपका।